सरदार याद सादी की तकरीर मुल्की मफाद के ख़िलाफ़ हैं, तो आप क्या कहेंगे? جی اگر یہ ملک کے خلاف ہیں تو پھر تو ان کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، یہ شرمناک بات ہے۔ جہاز صادق نے بہت برا کیتا ہے جڑا پاک فوج دے خلاف بولیا ہے، بہت دلی دکھ ہویا سانو، یہ سیاستدان آپس وچ مرن، ایک دوسرے نو گالیاں کڈن، جڑے لوگ شہید ہوئے نے پنڈاں جا کے دیکھو فوج ساڈی شہید ہو کے گئی ہے۔ بات کر رہے ہیں باجوہ صاحب کی کہ ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، ان کا نام سنتے میرے خیال سے انڈیا والوں کی بھی ٹانگیں کانپتی ہیں، تو ہم اس چیز کو ایگری نہیں کرتے۔ جنرل قمر باجوہ ایک اچھا آرمی چیف ہے کیونکہ ملک کی پولیٹیکل کردار کو بھی سمجھ سکتے ہیں، اس طرح مختلف باتیں ہیں اس میں آتے ہیں ایشوز کی۔ یونائیٹڈ نیشن میں اس کے بارے میں بات ہوئی بالکل، اور اس کی آرمی چیف پر بیان دیا ہے وہ غلط ہے، یا تو پاکستان سے باہر کر دے یا اس کو پھانسی دے دے۔ جس نے بیان دیا ہے اس نے کبھی جا کے گاؤں دیکھیں جو بارڈر کے اوپر ہیں، ان کے ساتھ کیا گزری ہے؟ یا تو اسپیکر صاحب ٹر کے دیکھیں نا بھی کون اچھا ہے، اس نے بیان دیا ہے اور غلط دیا ہے۔ یہ سمجھتا کہ فوج انہوں دی ہے ماما فوج دا، وہ کی اسی مر گئے کہ نواز شریف اور رشتہ دار نہیں یا کسی نہیں، فوج سارے پاکستان دی ہے جی۔ ایک اسپیکر کی سیٹ پہ بیٹھنے والا بندہ اس طرح کا بیان دے گا جو ملکی سالمیت کے لیے نقصان دہ ہو، تو اس طرح کا بیان میرا نہیں خیال کہ عام عوام کے لیے بھی قابل قبول ہو۔ محب وطن پاکستانی ہونے کی ایک نشانی ہے کہ اگر کوئی پاکستان کے خلاف ذرا سی بھی بات کرتا ہے یا ہمارے قومی اداروں کے خلاف، خاص طور پہ فوج جس سے ہمارا پورا ملک پیار کرتا ہے، تو اس کے خلاف اعراض خرائیاں کرنا یا ان کے خلاف بات کرنا، ہمارے سیاستدانوں کو پاک فوج کے خلاف کوئی بات نہ کیا کرے۔ یاد صادق غدار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ارسلان خواجہ۔ ناظرین، گزشتہ 4 دنوں سے ہمارا میڈیا، بلکہ ہمارا میڈیا نہیں، بھارتی میڈیا بھی سردار ایاز صادق کی تقریر کو ڈسکس کر رہا ہے، جون سی انہوں نے تقریر نیشنل اسمبلی میں کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے ہمارے آرمی چیف کی ٹانگیں کانپ گئی تھیں ابھینندن کیس میں۔ شاہ محمود قریشی فارن منسٹر جون سے ہیں، ان کے پسینے چھوٹ رہے تھے ابھینندن کیس میں، اور ہم نے ابھینندن کو چھوڑا، بھارت سے ہم ڈر گئے تھے، اس وجہ سے ہم نے چھوڑا۔ لیکن میں ایاز صادق صاحب کو یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر ہم ڈر گئے ہوتے تو ہم ان کے طیارے گراتے ہی نہ۔ آج کے پروگرام میں ہم عوام سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ اس بارے میں کیا رائے دیتی ہے سردار ایاز صادق کی سپیچ کے بارے میں۔ آئیے چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال چال ہے؟ اللہ کا شکر ہے جی۔ بھائی جان، ایاز صادق نے قومی اسمبلی میں تقریر کی تھی، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ اس نے جو تقریر کیا، میں کہتا ہوں کہ اس کو زندہ بھی کیسے چھوڑا ہے اداروں نے، ٹھیک ہے؟ پہلا بات تو یہ پاک فوج کے خلاف یا پاکستان کے جتنے بھی ادارے اس کے خلاف آواز اٹھانا، یہ تو پاکستانی نہیں کر سکتے، کوئی غیر ملک والا کر سکتے، چاہے انڈیا ہو چاہے باقی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہہ رہے کہ پاک فوج انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان ابھی ایک ایسا ملک بن رہے کہ پوری دنیا میں انشاءاللہ سپر طاقت ہوگا۔ پاکستان نہ پہلے کسی سے ڈرے، تاریخ گواہ ہے، نہ آپ ڈرتے، اور 1965 میں ہر چیز میں وہ سامنے، تاریخ گواہ ہے، کوئی جھوٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو مارچ میں ہوا تھا نا، جیسے 2 جہازیں گرائی انڈیا کی، ٹھیک ہے، وہ بھی سامنے ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اس کو پھر ایک نبی کے اخلاق کی وجہ سے اس کو واپس ادھر چھوڑ دیا، ٹھیک ہے؟ اخلاق اختیار کر کے، یہ ڈر کی وجہ سے نہیں، اگر ڈرتے تو اس کا جہاز ہم نے گراتے، ٹھیک ہے؟ تو ہم پاک فوج کے ساتھ ہیں، ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، کوئی بھی ایسا بیان دے دے ہم اس کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں۔ آپ کے خیال میں قانون کو ایکشن لینا چاہیے ان کی تقریر پہ، تاکہ ان فیوچر کوئی بندہ ایسی حرکت نہ کرے، غلط بیانات نہ دے؟ قانون کو تو فوراً ایکشن لینا چاہیے تھا، میں کہتا ہوں کہ ایک دن کو اس کو نہیں چھوڑنا تھا، یا تو پاکستان سے باہر کر دے یا اس کو پھانسی دے دے۔ ہاں، پھانسی دے رہے کوئی، ہاں بالکل پھانسی دے رہے۔ کل کوئی اس طرح کی کوئی اور اٹھے گا تو اداروں کے خلاف، اداروں کو کمزور کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرے گا، تو اس کو پھانسی دینا چاہیے، کوئی بھی پھر اس طرح نہیں۔ آپ کیا کہیں؟ آپ بہت مسکرا رہے ہیں۔ بھائی نے بات بڑی کیٹاگوریکلی کی ہے کہ جو بندہ پاکستان کے ڈیفنس اداروں کے بارے میں اس طرح کی بیہودہ باتیں کرے گا نا، تو وہ یا تو پاکستان کا غردار ہے، وہ پاکستانی ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر وہ پاکستانی تو اس طرح کی بات کرنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچنا چاہیے کہ میں اپنے منہ پہ خود تماچا مار رہا ہوں، تو اس نے اپنے منہ پہ خود تھوکا ہے۔ تو ایسے بندے کو اسمبلی میں تو کیا دنیا پاکستان میں نہیں ہونا چاہیے، بھائی نے کہا میرے خیال اس کو دنیا میں نہیں ہونا چاہیے۔ تو رہی بات ابھینندن کی، ابھینندن کو ہم نے اخلاقیات کی وجہ سے چھوڑا ہے، اس کو ہم نے اس لیے نہیں چھوڑا کہ وہ خوف یا ہراسمنٹ کی وجہ سے کوئی ایسا مسئلہ ہوا ہے کچھ ہوتا تو ہم ان کے جہاز ہی نہ گراتے، خوف ہوتا تو جہاز۔ یہ تو ہم نے ان کے منہ پہ یہ تھپڑ مارا تھا کہ آپ لوگوں نے اتنا ہمارے بارے میں برا سوچتے ہیں، مگر ہم کتنے پولائٹ انداز سے آپ کو اس کا جواب دیتے ہیں۔
तो क्रिटिसाइज जो है ना वो पार्टियों में आपस में होना चाहिए, डेमोक्रेटिक पार्टी यहाँ चलती रहती हैं, होना चाहिए, मगर डिफेंस जो अदारे हैं ना उनके लिए नहीं। ये तो बड़े एक बड़ा मुत्तहिद अदारा है जो पाकिस्तान की बका के लिए लड़ रहा है, और हर दफ़ा इन्होंने बड़ा बुरी तरह उनको चीट किया है, बुरी तरह उनको मारा है, बुरी तरह भगाया है। अब इन्होंने ये क्यों डरेंगे उनसे? तो ऐसी कोई बात नहीं। याद सादक को शेम, उसके लिए लानत है कि इस तरह की उसने बात की है, उसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। आपके ख्याल में सियासत की जंग मुल्क से ज़्यादा बढ़कर है? मैं कहता हूँ ये सियासत अगर ऐसी करते हैं ना तो इनको ना सियासत करनी नहीं चाहिए। सियासत ये नहीं होती, सियासत जो तो घर में भी होती है, दो फैमिली में भी हो सकती है, दो भाइयों में भी हो सकती है, मगर वो कभी एक बाप के ख़िलाफ़ नहीं होंगे कि मेरा बाप, मैं इस बाप का बेटा नहीं हूँ। वो कुछ भी होगा मगर मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं बोलेगा, क्योंकि यहाँ से हम खाते हैं, यहाँ से हम पीते हैं, और ये इसी से हमारी आन और शान और बका है, इसी की वजह से हम सरखरू हैं। अगर वो नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। हमारे पास एक और भाई साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं अयाज सादिक की तकरीर के बारे में। वालेकुम सलाम जी। जी जी हुकूमत है ना अपनी मौजूदा, और इमरान खान साहब ये इंतहाई किस्म के इल्ज़ामबाजी करके ना ये समझदा कि फौज इन्हों की है मामा फौज का, वो की असी मर गए कि नवाज शरीफ और रिश्तेदार नहीं, या किसी नहीं, फौज सारे पाकिस्तान की है जी। ये कहना कली मेरी फौज है तो उन्होंने सारा लैके सारे लुट मारो रबलम हो रहा है, तो गरीब आदमी तो इंतहाई मरन दे। तो असी तो मैं रंग का पालिश का काम करता वहाँ, कोरोना तो बाद पहली दिहाड़ी लगी है इतने, तो एवं इल्ज़ामबाजी करके तो महंगाई कितने पहुँच गई। 100 रुपये किलो सब्जी हो रही साढ़े मुल्क की पैदावार पैसे वो इन्हें 100 रुपये किलो है, जो अपना टमाटर है 200 रुपये किलो। ना गरीब आदमी कोई शह लै सकता, ना हांडी रोटी तो बाजार हो गया। आपके ख्याल में अयाज सादिक ने जौन सा कौमी असेंबली ऐसी गल नहीं की, ये बस इल्ज़ामबाजी करन दिया, इल्ज़ामबाजी करके हुकूमत ने ना फौज में वर्ग ला रहा। आपके ख्याल में अयाज सादिक गद्दार नहीं? नहीं, एक नंबर। अस्सलाम भाईजान किस सियासी जमात को सपोर्ट करें? PTI को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, 4 दिन पहले कौमी असम्बली में सरदार अयाज सादिक ने तकरीर की थी, उस बारे में आप क्या कहें? जी वो सीधी सीधी गद्दारी है मेरी नज़र में। तो एक स्पीकर की सीट पे बैठने वाला बंदा इस तरह का बयान देगा जो मुल्क की सालमियत के लिए नुकसानदेह हो, तो इस तरह का बयान मेरा नहीं ख्याल कि आम आवाम के लिए भी काबिल कबूल हो। उनको सोच समझ के अपने अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए, इससे इंडिया के जो मौक़िफ़ को तक़वियत मिलती है, तो जो ओबियसली हमारे लिए नुकसानदेह है। आपके ख्याल में सियासत की जंग मुल्क के मफाद से बढ़कर? नहीं, सियासत एक तरफ, मुल्क एक तरफ होना चाहिए। आपके हर मफाद के ऊपर ना मुल्क की सालमियत होनी चाहिए। आपको हर चीज़ बोलने से पहले आप असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर इस तरह की बात करेंगे तो साफ ज़रा दुश्मन को इससे तक़वियत मिलेगी। बिल्कुल। और भारतीय मीडिया भी बार बार, उनको तो वो ब्रेकिंग न्यूज़ मिल गई है अयाज सादिक की स्पीच, तो आपके ख्याल में कानून को एक्शन लेना चाहिए अयाज सादिक? जी बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए। इस मामले के ऊपर बिल्कुल कोई कानून साजी भी होनी चाहिए। जिसका जो दिल करता है बयान देता, फ्लोर पे खड़े हो, इतना बड़ा फोरम है उसके ऊपर आप खड़े हो किस तरह का बयान दे रहे हैं, और माशाल्लाह मैच्योर हैं, स्पीकर की सीट पर रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल आपको ये बातें ज़ेब देती हैं। आप लाख जस्टिफिकेशन दें, इसके ऊपर कोई जस्टिफिकेशन बनती नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। भाईजान किस सियासी जमात को सपोर्ट करते हैं? मैं तो इस वक्त PTI को सपोर्ट कर रहा हूँ। वक्त के साथ साथ में भी चेंजिंग आए। अभी फ़िलहाल आवाम तंग है, हम खुद भी तंग हैं बढ़ती हुई महंगाई से। अपोजिशन अगर बढ़ती हुई महंगाई पे सिर्फ आवाज़ उठाए तो वो बड़ा बेहतर बात है, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वो आवाम का साथ समझ आता है कि आवाम का साथ। लेकिन मुहिब वतन पाकिस्तानी होने की एक निशानी है कि अगर कोई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ज़रा सी भी बात करता है, या हमारे कौमी इदारों के ख़िलाफ़, ख़ास तौर पे फ़ौज, जिससे हमारा पूरा मुल्क प्यार करता है, सिर्फ हम नहीं, हमारे बच्चे, हमारे बूढ़े, हमारे बड़े, सब बहुत प्यार करते हैं अपनी फ़ौज से, अपने पाक फ़ौज के इदारे से। तो उसके ख़िलाफ़ मतलब एराज़ खरैयाँ करना या उनके ख़िलाफ़ बात करना, ये हमारे सियासतदानों को, मैं अपने तमाम पार्टीज़ के सियासतदानों से रिक्वेस्ट करूँगा कि कम से कम पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई बात ना किया करे। बाकी इमरान खान का रहना ना रहना ये किस्मत की बात है। उसका मतलब हमने सपोर्ट किया PTI को कि हालात अच्छे होंगे। ठीक है, बढ़ती हुई महंगाई है, वो बंदा टाइम मांग रहा है इमरान खान कि 1-2 साल का टाइम दे, मैं हालात को बेहतर करूँगा, महंगाई को कंट्रोल करूँगा। माफिया है इसके पीछे या कोई और सिस्टम्स हैं, इसके बारे में मैं कुछ ख़ास नहीं जानता। मैं भी एक आम आवाम हूँ, एक शहरी हूँ, लाहौर का रहने वाला। लेकिन मैं अयाज सादिक साहब से, राना सनाउल्लाह साहब से, जो मेरे मुल्क के बड़े बड़े सियासतदान हैं, जिनकी बतौर मतलब आवाम भी इज़्ज़त करती है, जिनकी, उनको चाहिए, उनको मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की जो अफवाज है, उनके इदारों के ख़िलाफ़ कोई भी गलत बात
करना या आपका कोई सियासतदान करता है तो उसको शट अप कॉल देनी चाहिए आपको। आपके ख्याल में कानून को एक्शन लेना चाहिए यासद के खिलाफ? देखिए लाजमी, मैं एज ए मुहिब वतन पाकिस्तानी कोई भी अगर बात करे, पहले मैं अपने घर की बात करता हूँ, अगर मेरा सगा भाई भी मेरे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करेगा तो मैं उसके ख़िलाफ़ भी एक्शन लूँगा। लिहाजा एयाज सादिक के ख़िलाफ़ ये एक्शन होना चाहिए और ज़रूर होना चाहिए। मैं एज ए पॉलिटिशियन उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन फिर भी उनको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गद्दारी का कोई बयान नहीं देना चाहिए किसी भी सियासतदान को, चाहे वो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अगर वो भी गलत बात करे तो उसके ख़िलाफ़ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आपके ख्याल में सियासत की जंग मुल्की मफाद से ज़्यादा बढ़ती है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। सबसे पहले पाकिस्तान मेरी जान, सबसे पहले पाकिस्तान है, उसके बाद कोई सियासतदान आता है, उसके बाद कोई। देखें, फ़ौज का इदारा भी तब तक है जब तक पाकिस्तान है, अगर पाकिस्तान नहीं है तो फिर फ़ौज का इदारे का भी कोई काम नहीं। इसलिए मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ अपने सियासतदानों से कि प्लीज़ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करना बिल्कुल आपको ज़ेब नहीं देता। मेरी रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात ना की जाए। पाक फ़ौज के लिए नारा पाक फ़ौज जिंदाबाद। भाईजान, कौमी असम्बली में याद सादिक ने बयान दिया है, उस बयान के बारे में आप क्या कहते हैं? मसलन उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने अभिनंदन को इंडिया से प्रेशर की वजह से छोड़ा है, पाकिस्तान भारत से घबरा गया था और आर्मी चीफ की हमारी टांगें कांप रही थी अभिनंदन केस में। आप क्या कहेंगे? सर पहली गल तो है कि अपनी हुकूमत च इन्ना पानी ही नहीं हैगा कि भारत नाल टक्कर लवे और इन्हां नूं मूँह तोड़ जवाब देना चाहिए सी। इन्हां नूं इस तरीके करना नहीं चाहिए सी जिन्ना ये उन्हां तों डरे ने, लिहाजा इन्हां दा कम सी। नहीं, आपके ख्याल में पाकिस्तान डरा है या याद सादिक ने गलत बयान दी है? नहीं, ये डरे ने लोग, ये हुकूमत वाले डरे हैं, डर के इन्होंने ये इतना एक्शन नहीं लिया जितना इनको लेना चाहिए था। अगर तो हुकूमत डरी होती तो वो उनके त्यारे दो गिराते ही ना। वो पहले की बात है, वो पहले की बात है ना। नहीं, जिस वक्त त्यारे गिरे हैं उस वक्त अभिनंदन को छोड़ दिया गया था पाकिस्तान की जानिब से। सर इन्होंने पहले तो उन्हों का जोड़ा बंदा छड्या वही गलत किया है, समझे? ये डरन की वजह नाल ही उन्हों का बंदा छड्या, वरना इन्हों किहड़ी लोड़ सी उन्हों का बंदा छड्डण दी कि उन्हों का मेन पॉइंट इन्हों के हत्थ च आ गया सी। कश्मीर के बारे कुछ कर नहीं सके, ये उन्हों का फौजी उन्होंने वापस दे रहे हैं। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल चाल? बस ठीक है, शुक्र अल्लाह। क्या मैं उस बयान में तक बोलना ही नहीं, मैं पहले कह रहा। अच्छा, दूसरी गल, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। वो तो साढ़े जम्मन तो पहले कारोबारी ने बंदा पूछे तेरी फैक्ट्री च मुलाजम है और तुसी तो उन्होंने खाक वर्गे नहीं गए। सारे मुल्क से बेड़ा गर्क करता, 50 साल मुल्क बेड़ा पिछे चला गया, दुनिया सीधी नहीं हो सकती। कारोबारी बंदे ने रोन डे ने, कारोबार कोई नहीं। ये वो किसी $1000 $1000 जरा कर्जा उन्होंने को ज़्यादा नहीं लिया, तो जी महंगाई की करप्शन वो $1 खरब करप्शन है, समझ गया? गिरफ्तारियाँ हो रही है, गिरफ्तारी वो जाना तो वो जाना, वो अल्लाह ताला जाने तो ये जाना, वो मतलब मैं कोई नहीं बोल बेटा। मैं अपना कारोबारी बंदा, मैं कारोबार के मतलब बोलना, सिर्फ है बोलना। वो चोर ने, वो चोर ने, वो चोर लुट्टी तुसी महंगाई च जाते हो तो चोर उन्होंने कही जाते। कोई खुदा का खौफ होना चाहिए यार, इंज नहीं होना चाहिए। तो आपकी नज़र में याद सादिक बिल्कुल ठीक? मैं किसी को ठीक नहीं कहता, ना चंगा कहना ना उन्होंने, मतलब मैं सिर्फ महंगाई के खिलाफ गल कर रहा, मैं गलत गल कोई नहीं कर रहा, तो ना मैंने कोई गलत गल करने की जरूरत है। जिन्हों मंगना इन्हों बहालिया था, जैसी बाम ओसा हुक्मरान। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जैसी बाम होएगी ओसा हुक्मरान होएगा। साडी बाम गलत है तो हर गलत नूं गलत नहीं आखदे। बस बंदे ने खराब ने यार, कि सही गल है। ओ यार सही हो जा, तू दुरुस्त हो जाएगा, सारी दुनिया दुरुस्त हो जाएगी। तू आप गलत है, वो तो बल्कि आप इल्जाम लगा रहे हैं। वो निजाम लाना ही गलत है ना। एक कारोबारी है, एक बिजनेसमैन बंदा, एक किताब मंगण वाला ते ओनू ला दिया तो गल ही कोई नहीं होई। एक खोते दा ते घोड़े दा रेट ही कोई ना होया। वो तुम समझदार हो, पढ़े लिखे हो, खोते तो घोड़े नूं पछाण ना करो। क्या कहेंगे? मसला मैं कह रहा जड़ियाँ रैशगावां बनाई, जड़ियाँ रैशगावां बनाई, ठीक है, रोटियां खुआ रहे हैं, वो रैशगावां बननियां चाहिए अस्पताल। कुछ वो करते रहते हैं, झूठ मारी आते हैं, बकवास करी आते हैं, झूठी बकवास करी आंदा, रोज नवे तो नवा शोचा नहीं सुनते। कौन? इमरान खान। पूरी पार्टी ये पूर वाले है,
जी नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने सुना और अयाज सादिक की तकरीर से ना सिर्फ हमारी अस्करी क़यादत को अफसोस हुआ बल्कि तमाम तर पाकिस्तानियों को अफसोस हुआ। जौन सी अयाज सादिक ने तकरीर की है नेशनल असम्बली में पाकिस्तान की फ़ौज के बारे में, इसलिए मैं अयाज सादिक से दरख्वास्त करता हूँ कि इस तरह के बयानात देने से गुरेज करें और पाकिस्तान का अच्छा इम्पैक्ट, अच्छा इमेज आप लोगों को दिखाइए। आज के प्रोग्राम में आपके मेज़बान आपसे इजाज़त चाहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।